Hello learners. Sometimes we find difficulty how to make biology practical file. This is the solution for that. So this video will show you how to arrange practical file and what to write in the practical file. Normally the practical file is covered with the green sheet and loose sheets and plain sheets are arranged. You can buy 3 to 4 dozen of the both side ruled sheets and 3 to 4 dozen of both side plain sheets. This much is required for the practical biology practical. When we start writing, you can put a tag. You have to arrange the sheets first and you can put all the sheets in this manner. If the experiment will complete in one page, then you can turn the next page and start writing. But if the experiment will complete in more than one page, then you can start writing from the left side. Diagram should be drawn on the right side, and then you can use the right side of the page. You turn the file and right side of the page and then the left side. But don't use the left side of the page of that particular experiment. You can turn over and use the next one for the next experiment. Tag should be loose. For the writing of the experiments, you can use black and blue pens, and for the drawing of the diagrams, only pencil is used. It's not the art file, it is a biology practical file, so don't make very decorative. You can put some of the pictures at the first page to decorate that, otherwise the simple file will go. This is a list of the core experiments. As per CBSE 24-25, there are 5 core experiments. Out of that, the experiment number 1 and 4, they are for the slide preparation, that is pollen germination on the slide, as well as the mitosis. Experiment number 2 and 3, they are of the coordinate method. Any one of them you can get it during the examination. And fifth experiment, that is a compulsory experiment. Everyone will get it, isolation of the DNA. Out of the 2 slide preparation, only one you will get during the exam. But in the practical file, all the 5 you have to write. This is a list for the spotting. There are 11 spots and you have to write all. Diagram should be drawn. That will be explained in my next video. This is the framework given by the CBSE for the biology practical examination. The practical will be of 3 hours. Maximum marks will be 30. There will be one major experiment, number 5, that is the isolation of the DNA. One minor experiment, that is experiment number 2 and 3. Only one you will get it, that is from the ecology. It is a coordinate method, plant population experiment. And for the slide preparation, the pollen germination or the mitosis, that will be any one of the slide you will get it, and you have to make the slide and you have to write about it. So out of 5 core experiments, 3 core experiments you have to perform in the examination. Spotting, out of 11, 7 you have to do that. That depends on the examiner which spots the examiner will choose. And about the practical record file and the viva, as you know that all the spots as well as the core experiments, they are based on your theory part. So you have to find out a good viva, how to prepare the viva. So concept should be good, because most of the time the viva is asked from the concepts. So practical record file, when you are going to make, that is a 4 mark, and viva will be asked, that is a viva that will be asked from the theory. So concept should be very clear. One investigatory project you have to make, the with the hand writing, you have to write the project report also. The viva will also be there. That will be explained in my next videos. So total marks will be 30. When we make the file, as you have already arranged the pages, you have to write the you have to use a blank page, write section A and core experiments. This is the content what you have to write in the file. This is the experiment number 1. You write the date also you have to put whenever you perform. When you make the index, you write all the core experiments, all the spots as mentioned in the CBSE curriculum. Then whenever you perform the experiment, you can write the date accordingly.
and take the teacher signatures also. So when we write the experiment, we have to write the aim, requirement, principle, then we have to write the procedure, then inference and precautions. Wherever we have to make the slide, we always have to write the precautions. So in experiment, we have to write the precautions. Requirement for the pollen germination on the slides, as you are aware, this experiment we are doing in vitro condition. Normally there is a interaction between the pistil, that will be the style and stigma, but here uh, we are dusting of the pollen grains will be done on the slides, and we have to use some nutrient solution. Why we are using the nutrient solution? Because we just require the growth of the pollen tube. So pollen tube germination and how it is coming out from the germ pore, how it is elongating, for that a nutrient solution is required, and sucrose, boric acid, magnesium sulfate and potassium nitrate they are mixed in a certain quantity with the water, and that will be there. So principle, if you just see that, it is exactly given as it will be in the theory. How to make the slide? We have to put some nutrient solution 1 to 2 drops on a slide, and then we have to put the pollen grains on that. Dusting कहते हैं हम इसको, dusting कर देते हैं उसके ऊपर, and then we will put the cover slip and keep it for some time. So nutrient solution में ही, as you know that the boric acid, magnesium sulfate, potassium nitrite and sucrose, they are present there. So pollen tube germinate होगा, elongate होगा, and उसमें जो nucleus है वो move करेगा. Everything we can observe after 10 minutes. And since this is an experiment you are conducting, इसमें हमें 2 precautions लेने पड़ेंगे. So in that way you have to write. डायग्राम्स हमेशा जो भी शीट होती है उसके बीच में बनते हैं, पेंसिल से बनते हैं. लेबलिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम वन साइड पर होती है, राइट साइड या लेफ्ट साइड पर, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा लेबलिंग्स है तो आप दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं. टॉप पर आपका कोर एक्सपेरिमेंट नंबर या होता है, यहाँ पर डेट भी हम लोग कई बार लिख लेते हैं, और बॉटम पे हम जर्मिनेशन ऑफ pollen grains, बिकॉज द कैप्शन वी हैव टू राइट ऑन दैट. सो वन डायग्राम आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन. हाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम? नीट डायग्राम होना चाहिए. जितनी भी आपकी इसमें लेबलिंग है वो बहुत नीट होनी चाहिए, और बाकी के डायग्राम्स आप अपनी प्रैक्टिकल बुक से भी ले सकते हैं, या जैसे आपका टीचर आपको गाइड करे. Experiment number 2, that is population density, plant population density by coordinate method. ये एक्सपेरिमेंट हमारा जो इकोलॉजी यूनिट है उससे रिलेटेड है, और उसका एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये उससे रिलेटेड है. इसमें हम जो इकोलॉजी होता है उसमें प्लांट या एनिमल की रिलेशनशिप जो होती है वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं. कनेक्ट करते हैं. इसमें हम कोई भी हैबिटेट लेते हैं, और जो इसका प्रिंसिपल है, यू कैन रीड द प्रिंसिपल. हम डेंसिटी कैसे निकाल रहे हैं प्लांट पॉपुलेशन की, ये प्रिंसिपल आपको लर्न होना चाहिए. ये आप जब इकोलॉजी का चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्लियर हो जाती है चीज़ें. इसका जो कैलकुलेशन होता है वो डेंसिटी का टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of the species in all the sample units and total number of sample units studied. So S upon Q, that will be of density. हम इसे कैसे कंडक्ट करते हैं? हम इसको कंडक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम कोई ग्राउंड लेते हैं, फील्ड लेते हैं. ये फील्ड स्टडी है, और हम इस तरह का स्क्वायर बनाते हैं, 1 by 1 कोऑर्डिनेट, 1 by 1 मीटर के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं. उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो इसके लिए हमें हैमर चाहिए होता है, नेल चाहिए होता है, मेजरिंग टेप हो जाएगा या आपका स्केल हो जाएगा. आप इसको 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर बना लीजिए. एंड देन ये तो इसमें तो 5 शोन है, दैट इज ओनली. ये आपको ड्रॉ नहीं करना, ये आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना फाइल में, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए. जैसे 20 by 20, 40 by 40, 60 by 60, 80 by 80, 100 by 100, इस तरह से हम लोग यहाँ पे 5 में डिवाइड किया, आप 10 में डिवाइड कर लीजिए. अब जितनी भी हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं, वीड्स हैं, छोटे वाले जो प्लांट्स होते हैं. श्रब और ट्रीज इसमें हम लोग नहीं काउंट करते हैं. तो जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं उसके सबके नेम्स तो हमें नहीं पता होते, तो हम इसको स्पीशीज ए, स्पीशीज बी करके हम इसको
अल्फ़ाबेट्स से हम दे देते हैं। तो इसको हम 8 to 10 स्पीशीज आप ले सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आप बना सकते हैं 10 प्लेसेस पर, 5 प्लेसेस पर, 8 प्लेसेस पर, 6 प्लेसेस पर, ये डिपेंड करता है आपका। और हमें ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये स्पीशीज ए, स्पीशीज बी जो भी आपने आइडेंटिफाई करी है, उसकी काउंटिंग की जाती है डिफरेंट स्क्वायर्स में, और उस पे हमारे काउंटिंग करके नंबर नोट किया जाता है। इसके लिए नोटबुक का रिक्वायरमेंट होता है हमारा। जब हम इसे टेबल पे डालते हैं, जब रफ वर्क हमने ग्राउंड में अपने फील्ड पे कर लिया, और जब हम टेबल पे डालते हैं तो टेबल के जो अपने स्पीशीज के नेम्स दिए हैं वो ABCD दिए हैं। आप जितनी भी स्पीशीज लेना चाहते हैं, 6, 8, 10 जितनी भी लेना चाहते हैं, और जितने भी आपने कोऑर्डिनेट्स को स्टडी किया है, आप कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे भी ले सकते हैं, एक फील्ड के डिफरेंट प्लेसेस पे ले सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स पे ले सकते हैं, आसपास अपने पार्क्स पे ले सकते हैं, गार्डन्स पे ले सकते हैं, कहीं से भी आप स्टडी कर सकते हैं, या स्कूल आपको जहाँ पर भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपने जो भी स्पीशीज चूज करी है, 5-6 स्पीशीज, वो कोऑर्डिनेट नंबर 1 में कितना नंबर है, 2 कितना है, 3, मतलब आपका 8 स्पीशीज हो सकती है, 10 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, वट एवर द नंबर विल बी, आप इसको टोटल कर लीजिए। और टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आपने कितने स्टडी करें, जरूरी नहीं है आप 10 स्टडी करें, आप जितने भी स्टडी करते हैं आप उतने टेबल पे डाल दीजिएगा। आपने 8 स्टडी करे, 6 करे, 4 करे, 5 करे, वट एवर द नंबर इज, आप इस पे डाल दीजिए, और उसको आपका टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, सपोज 6 है, 5 है, एंड देन यू हैव टू टेक दिस नंबर S एंड द Q एंड योर डेंसिटी विल बी देयर। इसका कोई टोटल नहीं होगा क्योंकि हम हर स्पीशीज का निकाल रहे हैं, हमने हर स्पीशीज की डेंसिटी को निकाला है। इनफेरेंस में हमारा क्या आ जाता है, इसका कंक्लूड हम किसको कैसे कर रहे हैं कि प्लांट्स दे आर ग्रोइंग टुगेदर, दे हैव द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स विद द एनवायरनमेंट, सच ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन एरिया रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी। सो डेंसिटी वैल्यू से सिग्निफाइज बिकॉज दे शो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच स्पीशीज। तो इससे हमें पता लग जाता है कि किस स्पीशीज की कितनी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। कोई ज्यादा होगा, कुछ कम होगा, डिपेंड करता है कि जितने आपके वीड्स और प्लांट्स जो आपके छोटे वाले हैं वो आपके कैसे वहां पर ग्रो होते हैं। The number of individual of species varied in different coordinates, क्योंकि हमने कई सारे coordinates को स्टडी किया हुआ है, नंबर हमारा वेरी कर सकता है, और हमने डिफरेंट हर्ब्स को हमने वेजिटेशन कॉम्पोजिशन को यहाँ पे स्टडी करते हैं। प्रिकॉशंस हमने लिखना ही है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, डायग्राम इसमें कोई भी नहीं होता है। आपने प्लांट्स जो स्टडी करे होते हैं एज अ स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी, स्पीशीज डी, इनको कलेक्ट करना होता है, इनको ड्राई करना होता है, जैसे हम हाइपेरियम पे करते हैं। आप न्यूज़पेपर पे इसको रख सकते हैं, इसको ड्राई कर लीजिए 10 to 15 डेज तक। जब इसका वाटर बिल्कुल एब्सॉर्ब हो जाए, देन उसको छोटे छोटे आप पाउचेस ले लीजिए, जिपर पाउचेस ले लीजिए, एंड देन यू जस्ट पुट इन दैट एंड राइट स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, एंड यू कैन यूज 2 प्लेन पेजेस, और उस पर आप किसी सेलो टेप से या ग्लू से आप इसको पेस्ट कर दीजिए, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी। सो डायग्राम कोई नहीं बनेगा। टेबल जो आपने बनानी है वो रूल शीट पे भी बना सकते हैं और प्लेन शीट पे भी बना सकते हैं। ये जब आपकी इकोलॉजी यूनिट कवर होगी, देन ओनली वी विल स्टडी दैट। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी हमने कोऑर्डिनेट मेथड से करना है, सेम चैप्टर का है। पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन, या फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी में हमने देखना है कि हमें किस कोऑर्डिनेट में वो प्लांट की जो स्पीशीज है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे ग्रो कर रही है। सो प्रिंसिपल आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। जो इसकी हमारा फ्रीक्वेंसी इंडेक्स निकलेगा वो परसेंटेज पे निकलेगा, नंबर ऑफ सैंपल्स in which the species occurs upon total number of sampling units coordinates employed for the study। ये इसका कैलकुलेटिंग फॉर्मूला है, कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है। इस पे आपने मेथड वही है, प्रोसीजर वही है, आपने 1 by 1 के आपने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, डिफरेंट एरियाज में बनाने हैं। ये भी हो सकता है जब आप पहला वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ आप ये वाला भी कर सकते हैं। एक बार आप फील्ड पे निकले हैं तो दोनों एक साथ कर सकते हैं आप। और आपने अल्फाबेट्स को यूज करना है स्पीशीज के नेम्स की जगह, आपने रिकॉर्ड करना है पूरा डेटा, एंड नोटबुक में सारा के सारा आपने एंटर करना है। जब इसको हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल एज आई टोल्ड यू, आप प्लेन पेज या रूल्ड पेज कहीं पर भी बना सकते हैं। ये नंबर आपका वेरी करता है, उसको आप कम या ज्यादा कर लीजिएगा जितने कोऑर्डिनेट आपने स्टडी किए। ये नंबर आपका वेरी करता है, इसको कम या ज्यादा कर लीजिएगा जितने स्पीशीज आपने कवर किए हुए।
यहाँ पे सपोज स्पीशीज ए है, हो सकता है कॉर्डेट ए में वो ना प्रेजेंट हो, तो आप डैश डाल दीजिए, कॉर्डेट बी में 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, मतलब इसमें 5 प्लांट्स हो, इसमें 8 प्लांट्स हो, इसमें 2 प्लांट्स हो, इसमें कोई भी नहीं मिले, इसमें कोई भी नहीं मिले, आपने सारा इसको कैलकुलेट करके और आपने यहाँ पे इसमें टोटल नंबर लिख देना है। और यहाँ पर आपका जो आएगा कॉर्डेट, आपके जितने भी नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉर्डेट्स आपने कितने स्टडी करें, सो इसको टोटल करिए और इसको टोटल करिए, n/q × 100। इसमें भी आपने पूरा सबका टोटल नहीं करना, सब टोटल नहीं करना है। रीजन क्योंकि हम हर स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं पर कॉर्डेट में। सो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स जो है ये इसका इन्फेरेंस है कि वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज कॉज्ड बाय द फैक्टर लाइक सॉइल कंडीशन, quantity and dispersal of the gemule, and the vegetative propagation, grazing, predation, disease, and other biotic activities. These type of the points that can be asked in your viva. तो आपका इन्फेरेंस हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, एज वेल एज यू हैव टू राइट ऑल्सो इन योर प्रैक्टिकल फाइल कि जब भी आप इसे कंडक्ट करते हैं तो आपने इसको कैसे लेना है। फ्रीक्वेंसी बाकी आपने जितना भी दिया हुआ है इतना कंटेंट आपका सफिशिएंट है आपके प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए, आपके लर्निंग के लिए, आपके वाइवा के लिए। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वाइवा के क्वेश्चन का क्वेश्चन एयर आई विल गिव यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, किस तरह से क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। प्रिकॉशंस ऑब्वियसली आपने लिखने, बिकॉज आप फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर फील्ड के एक्सपेरिमेंट्स हो गए, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग मेजरमेंट हो गया आपका, और इसमें भी आपको कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा। प्लेन शीट्स आपने फिर से चूज करनी है, वही जैसे आपने पहले, ये तो सेम मैंने रिपीट किया हुआ है, बट आपने जो भी स्पीशीज आपने चूज करी है, स्पीशीज ए स्पीशीज बी, ये ध्यान रखिएगा आप कोई श्रब मत लीजिएगा, रोज का, मैंगो ट्री, नीम लीव्स, ये सब आप कुछ मत कलेक्ट करिएगा, ये सब ट्री के फॉर्म में है। श्रब्स में बोगनवेला वगैरह मत लीजिएगा, आप उतना ही छोटा छोटा प्लांट्स लीजिएगा जो आपके वीड्स के फॉर्म में या हर्ब्स के फॉर्म में जो आपको वहां पे प्रेजेंट है। तो आप एट दैट टाइम आप दो सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको वही न्यूज़पेपर पे आप ट्राई करिए, और इसको उसके बाद आप जिपर पैक्स पे डाल के आप ग्लू या टेप से इसको प्लेन शीट्स पे लगा दीजिए। तो आपने जितने भी सैंपल्स इसमें स्टडी करे हैं मोरलेस आप उसको एक सैंपल, बिकॉज यू हैव कंडक्टेड द प्रैक्टिकल, आपने से परफॉर्म किया प्रैक्टिकल, तो एक हमारे पास एविडेंस होता है कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, एंड दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग दिस शीट्स। तो इस तरह से आप ये यहाँ पे शीट पर ये आप दोनों लगा सकते हैं। सो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 4 है उसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा। एज दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स वर डन इन द फील्ड, फील्ड स्टडी है, तो एग्जामिनर आपको फील्ड में नहीं भेजता ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। यहाँ पर आपको एक A4 शीट पर कोऑर्डिनेट्स बना के दे दिए जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है जो 2 और 3 आप करेंगे, जो फील्ड में करेंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो आप जब लैब में करेंगे तो आपको एक A4 शीट पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स मिल जाएंगे, कैलकुलेशन फॉर्म में होता है, एंड दैट इज द रीजन दैट एक्सपेरिमेंट इज ऑफ 4 मार्क्स, क्योंकि इसमें आप कुछ कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने काउंटिंग करना, कैलकुलेशन करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल याद होना चाहिए, आपको इन्फेरेंस याद होना चाहिए, तो आप कैलकुलेट करके आप उसको सारा का सारा यू कैन राइट इन योर एग्जाम। This is a fourth experiment. This is a slide preparation, as the first experiment was also a slide preparation. ये भी आपका experiment slide preparation पर है। कोई एक स्लाइड प्रिपरेशन मिलता है, इजी हमें पॉलन जर्मिनेशन पड़ता है क्योंकि आपको न्यूट्रन सोल्यूशन बना बनाया मिल जाता है, आपके लैब असिस्टेंट्स आपको रेडी करके दे देते हैं, और आपको प्लांट मिल जाता है, फ्लावर मिल जाता है, उसमें आपने पॉलन ग्रेन्स की डस्टिंग करनी होती है। इस एक्सपेरिमेंट में आपने माइटोसिस को शो करना है। तो माइटोसिस में तो हमारी फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये माइटोसिस हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमें चाहिए, तो इसके लिए हम लोग अनियन रूट टिप यूज करते हैं। तो अनियन रूट टिप को मैं यूज करते हैं, इसमें हम सेफ्रीन या मेथिलीन ब्लू यूज नहीं करते हैं। हमारा इसका जो स्टेन होता है वो एसिटोकार्बीन स्टेन होता है, थोड़ा केयरफुल रहना होता है। कई बार इसकी स्लाइड हमें अच्छी बन भी जाती है, कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि स्लाइड को आपका जो अनियन रूट टिप होता है उसमें एसिटोकार्बीन डाल के आपने हल्का सा वार्म करना होता है, हीट नहीं करना होता बल्कि हल्का सा गर्म करना होता है, और पहले रूट टिप को आपको SCL में थोड़ी देर को रखना होता है कि रूट टिप सॉफ्ट हो जाए। जब वो हल्का सा हीट हो जाता है तो वो एसिटोकार्बीन स्टेन को एब्सॉर्ब कर लेता है,
फिर हमने उस पर कवर स्लिप लगानी होती है, टैपिंग करनी होती है। थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए हमें। इसका जो प्रिंसिपल है ऑब्वियसली वो आपका पूरा माइटोसिस पे है कि सोमैटिक सेल्स में होती है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होती है, और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो हम प्लांट की कोई रूट टिप या शूट टिप करते हैं, तो रूट टिप हमारे लिए इजी रहता है, इसलिए हम लोग इसे रूट टिप करते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो मेंशन कि अगर हम एनिमल यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं। तो ये आपने जो डायग्राम्स है ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसको ड्रॉ नहीं करना अपने फाइल में, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि हम लोग एक रूट टिप को कैसे ग्रो करते हैं। आप एक बीकर ले लीजिए, घर में भी आप कोई कंटेनर ले सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक अ अनियन, उसका जो लोअर पोर्शन होता है आप उसको टिप कर दीजिए, एंड विद इन फ्यू डेज ये आपको रूट टिप मिल जाएगा। तो जो लोअर पोर्शन होता है सिर्फ आप उसको कट करिए, उसका जो बिल्कुल एंड वाला पोर्शन होता है वो डार्क वाइट तो नहीं होता, मतलब यू जस्ट फाइंड आउट द कलर डिफरेंस इन दैट। सो बिल्कुल जो डार्क वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल टिप पे जो होता है वो हम कट कर लेते हैं, and as I told you put it in on the slide, put the acetylcarmine, you have to warm it, and warm करके उसमें HCl में हमने डिप करके हमने डाला हुआ है। तो जब थोड़ा सा अच्छी तरह से वार्म हो जाता है, थोड़ी देर वार्म करते हैं हम इसको 3-4 मिनट्स तक, और उसके बाद वो स्टेन ले लेता है, स्टेन एब्सॉर्ब कर लेता है, देन वी विल पुट द कवर स्लिप, और ब्लंट एंड पेंसिल से या किसी भी चीज से हम उसको टैपिंग करते हैं। तो जब हम टैपिंग करते हैं तो उसके सेल्स जो होते हैं वो सब अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड उसमें हमें कोई भी स्टेज हमें मिल जाती है। तो जब हम लोग ये फाइल में बनाते हैं तो वी हैव टू राइट ऑल द स्टेजेस, लेकिन जब हम एग्जामिनर को दिखाते हैं, परफॉर्म करते हैं एग्जाम प्रैक्टिकल में, देन वी हैव टू शो ओनली 2 स्टेजेस। तो माइटोसिस की स्टेजेस तो यही होती है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। इंटरफेज नॉर्मली हम शो नहीं करते, हम प्रोफेज शो कर देते हैं, सब स्लाइड्स में प्रोफेज मिल जाता है हमको, क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस। मेटाफेज हमारे इक्वेटर पर आ जाता है, एनाफेज हमारा पोल्स पर आ जाता है, टीलोफेज एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, 2 में डिवाइड हो जाता है, एंड देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द टीलोफेज। तो एनी 2 phases that will be clear that you have to show, but in your practical file all the phases you have to write, and these are the comments, these are the appropriate comments I have written here. Any 2 you can take as desired by your teacher or examiner, any 4 you can take. इसको ये आपका स्लाइड प्रिपरेशन है और सिर्फ आपने 2 करना होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप कंडक्ट कर रहे हैं ये, तो हम प्रोसीजर नहीं लिखते हैं इसमें। तो जो भी स्लाइड प्रिपरेशन होगा आपका उसमें हम प्रोसीजर को नहीं लिखेंगे, एंड देन ओनली यू हैव टू राइट अबाउट इट। ऑब्वियसली इन्फेरेंस आएगा ही आएगा इसमें, because they have just mentioned the pre-existing cells, continuity depends on the cell division. There are 2 types of the cell division, and it's very important because it is meant for your growth and replacements of dead cells. As I told you, जब भी inference and प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली आपके लिए क्यों होता है, आपका वाइवा भी इसमें से आपका रेडी हो जाता है। आप इतना सा पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आपकी थ्योरी की बुक में जब आप अपनी थ्योरी प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास ये रहेगा। 2 precautions obviously you have to write in that. Here I mentioned 3, any 2 you can take. ये डायग्राम जो है आपका, ये आपने प्रैक्टिकल बुक से ले लीजिए, ये थोड़ा क्लियर डायग्राम था, आई हैव टेकन इट फ्रॉम द गूगल, एंड आपकी 11th की क्लास की एनसीईआरटी में भी आपके डायग्राम्स प्रेजेंट अवेलेबल है, और यहाँ पर भी आप किसी प्रैक्टिकल बुक से ले सकते हैं। सो दीज आर द फेसेस, ये आपके डायग्राम्स 1 पेज पर भी हो सकते हैं, आप 2 पेजेस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड्स। और पेंसिल से ड्रॉ करिए, कलर मत करिएगा इसको, एंड आप शेडिंग कर दीजिएगा। तो आप शेडिंग करके आप डिफरेंशिएट करवा सकते हैं क्रोमोसोम्स को, एंड लेबलिंग शुड बी देयर। सो दैट इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 4। The last experiment of 4 experiment, that is experiment number 5, ये सबको मिलना है, डीएनए एक्सट्रैक्शन का है। नॉर्मली बड़ा इजी वे में किया जाता है, इसमें हम लोग पल्प ले लेते हैं बनाना का, उसमें हम लोग इजी या जेंटिल करके जो हमारे पास सोप्स होते हैं, लिक्विड सोप्स होते हैं, वो डाल देते हैं, एंड देन हम इसमें इथेनॉल ले लेते हैं, और उस पे हम लोग इथेनॉल पे हमें डीएनए एक्सट्रैक्शन मिल जाता है। बट ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली प्लांट मटेरियल से करना चाहिए, जैसे स्पिनच लीफ हो जाएगा, ग्रीन पी सीड्स हो जाएगा, पपाया हो जाएगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है। सो नॉर्मली हम इस तरह के प्लांट मटेरियल को लेते हैं। मॉर्टल पेस्टल लेते हैं जिसमें वो खड़ल कहते हैं, जिसमें वो
पेस्ट बनाया जाता है, आयुर्वेद में आपने देखा होगा यूज होता है। उसमें हमने स्पिनच लीव्स या कोई एक मटेरियल ले लीजिए आप, सपोज आपने ग्रीन पी लीव्स सीड्स लिया, आपने उसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया, थोड़ा सा वाटर मिला लिया, उसको फिल्टर कर लिया और फिल्ट्रेट को आपने किसी भी टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब पे ले लिया। अब जब आपने कोई प्लांट मटेरियल लिया है तो प्लांट मटेरियल एज अ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, देन आपने ये देखना है कि डीएनए आप एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं। तो डीएनए तो आपका क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन्स, तो हमें क्रोमोसोम तक पहुंचना है, उससे पहले हमें सेल वॉल को रिमूव करना है, सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करना है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ योर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, and then ribosomes, that is sorry, RNA is also there। तो हमें 4 एंजाइम्स को यूज करना है। सेलुलोज के लिए सेलुलेज यूज करना है, प्रोटीएज यूज करना है, प्रोटीन्स के लिए राइबोन्यूक्लियस हमने आरएनए के लिए करना है, लाइपेज हमने करना है लिपिड्स के लिए। स्कूल जैसे आपकी जगह आप एक ग्लास रॉड भी यूज कर सकते हैं। इथेनॉल हमने चिल्ड लेना है, 90% एल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल, वो लेना है। तो हमने जो इसका प्रिंसिपल है वो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, आपकी इतनी बड़ी यूनिट है हमारे पास इनहेरिटेंस वाले, जिसमें मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में हमने सारा कुछ शो किया हुआ है। तो वाइवा आपका वहां से भी रेडी हो जाएगा, प्रिंसिपल भी अकॉर्डिंगली ये हमारा वहीं पर मेंशन्ड है। और जब हमें प्रोसीजर ये दिया हुआ है कि एक के बाद एक आप इसमें एंजाइम्स मिला सकते हैं। एंजाइम्स आपको पता है बहुत लिटिल क्वांटिटी में मिलाया जाता है, बिकॉज एंजाइम बहुत छोटी क्वांटिटी में ही वर्क करता है, फंक्शन करता है। सो वन आफ्टर अनदर यू जस्ट पुट द सेलुलेज एंड द प्रोटीएजेस एंड द फॉर द एंजाइम फॉर द आरएनए एज वेल एज फॉर द लिपिड्स, आप एक के बाद एक ऐड कर दीजिए। जब सारे के सारे एंजाइम्स आपके उसमें मिक्स हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा चिल्ड अल्कोहल, आपने रेफ्रिजरेटर में इथाइल अल्कोहल रखा हुआ है किसी भी कंटेनर में, आप थोड़ा सा ग्लास रॉड डालिए उसमें या स्पूल डालिए। आप अगर ट्यूब में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो आप ग्लास रॉड से कर लीजिए, या फिर बॉइलिंग ट्यूब कर रहे हैं तो आप ग्लास रॉड डाल दीजिए। आप उसके कॉर्नर से आप इथाइल अल्कोहल अगर डालेंगे तो आपका यहाँ पे सारा का सारा डीएनए जो होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और बस आपने वो ये दिखाना है, बहुत छोटा सा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक्सपेरिमेंट में, बहुत जल्दी हो जाता है एक्सपेरिमेंट, हार्डली इट टेक 5 to 7 मिनट्स। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट टफ नहीं होता, बट आपने एंजाइम कितना डाला है, आपने कितना उसका लिक्विड लिया है, उस पर डिपेंड करता है। इजी प्रैक्टिकल है। और नॉर्मली जो हम लोग बनाना पील से आपके कई जगह लिख दिया हुआ भी है, उससे हम नहीं करते, हम नॉर्मली इससे हम लोग कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली डीएनए जैसे भी हमें मिलता है, what is the role in that and all that you have to just read that, and then you only you have to go for the 2 precautions। so precautions आपने इसमें लिखने ही लिखनी है। तो ये हो गए आपके 5 एक्सपेरिमेंट्स। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आपने को जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स का फ्रेमवर्क दिखाया था तो उसमें इसमें आपका मेंशन था कि आपके स्लाइड प्रिपरेशन एक होगा, इधर यू कैन गेट द पॉलन जर्मिनेशन स्लाइड। और पॉलन जर्मिनेशन में आप जब कंडक्ट करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है आपका ये, जब आप इसको कंडक्ट करते हैं तो आपको जब फ्लावर कोई और दूसरा अवेलेबल होता है, और जब एग्जाम होता है आपका, बिकॉज समर बाउंड स्कूल्स के जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके जनवरी से स्टार्ट होते हैं, तो जो भी आपके लिए फ्लावर अवेलेबल हो, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, वो आपने स्लाइड प्रिपेयर करना है, और मार्क्स उसके 1 या 2 मार्क्स आपके स्लाइड प्रिपरेशन पे, बाकी आपके राइटिंग पर है। क्योंकि आप इसे परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोसीजर मत लिखिएगा एग्जाम टाइम पर प्रैक्टिकल फाइल में जितना इस वीडियो में दिखाया गया है, अगर आप उतना पूरा मेंशन करते हैं तो आपका ये 4 एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करता है। दूसरा माइटोसिस, एज आई टोल्ड यू, प्रोसीजर नहीं लिखा जाएगा, एनी 2 स्टेजेस यू हैव टू शो, और 4 स्टेजेस नहीं शो करते। थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना पड़ता है, बॉम्ब किया जाता है, हीट नहीं किया जाता। 2 फील्ड स्टडी जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं प्लांट पॉपुलेशन वाला, वो आपने कोई एक मिल जाएगा, या तो डेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी में। फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। जब हम इसे एग्जाम के लिए परफॉर्म करते हैं तो 3 to 4 क्वाड्रेंट में हम लोग स्टडी करवाते हैं बच्चों को, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस है, तो 4 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और लास्ट एक्सपेरिमेंट एज इट इज अ डीएनए, इजी वन that you can perform. So apart from that, you will get 7 spots also.
spotting, because there are 11 spots you have to conduct, there are 7 subdivisions are also there, and these spots when you will perform, आपने इसमें सिर्फ comment लिखना होता है और identify करना होता है. So that will be about the form that I will show you in my next video. So that's all. Diagram ये आपका DNA का, आप इसमें लेबलिंग कर दीजिएगा. Spool as well as the DNA. कोई भी बुक से आप डायग्राम ले सकते हैं. And next video will be of the spotting. Thanks for watching.